SIEC and IQAC in collaboration with SV Wealth Partners. I extend heartiest welcome to our esteemed principal, Professor R.K. Gupta sir, IQAC convener, Professor Anita Bajaj ma'am, convener of Finance Club, Mrs. Rimmi Jain ma'am, convener of the Commerce Association, Dr. Karishma Saraswat ma'am, convener of SIEC and president of IIC, Ms. Sonia Dhingra ma'am, and convener of IIC and nodal officer NISP, Dr. Sonika Nagpal ma'am, our respected faculty members and all the distinguished attendees present here today. Financial literacy is a cornerstone of financial well-being. It empowers individuals at every stage to make informed decisions and achieve financial goals and build a secure future. To kickstart our discussion on the crucial topic of financial literacy, we are absolutely delighted to introduce our distinguished speaker today, Dr. Arun Punia sir. His dedication to financial literacy is truly commendable. He has been actively involved in investor awareness programs, having been impaneled as a resources person with esteemed organizations like the Indian Institute of Corporate Affairs, the Chartered Accountant of India, and the National Institute of Securities Market. Most recently, his expertise gained further recognition with his empanelment as a smart with the Securities and Exchange Board of India. Sir's insights and experience are sure to add invaluable to us, are sure to be invaluable to us today. Without any further ado, I would like to invite Dr. Arun Punia sir to take the virtual stage and share his wisdom with us. Dr. Punia, the stage is yours. Good morning, everyone. Good morning, everyone. My name is Arun Punia, and today's investor awareness program organized by Bombay Stock Exchange. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ओवरव्यू ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट. सभी इन पार्टिसिपेंट्स जान पाएंगे सिक्योरिटीज मार्केट के सेगमेंट्स के बारे में भी. Further, we will discuss about the journey of BSE regarding BSE IPF, that is Investor Protection Fund. We will also discuss about how to participate in a public issue. पब्लिक इशू में किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया जा सकता है. इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी इन्वेस्टर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस एंड वेरीफाइड सोर्सेज कौन से होते हैं ड्यू डिलिजेंस को कंडक्ट करने के लिए. राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स वी विल ऑल्सो डिस्कस रिगार्डिंग स्कोर्स, जो कि एक कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है, सेबी के द्वारा डेवलप किया गया है. ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया जाएगा. वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द BSDA अकाउंट, जिसके अकॉर्डिंग सभी इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिल सकता है. सभी स्मॉल इन्वेस्टर्स BSDA अकाउंट के फीचर्स को यूज कर सकते हैं रिड्यूस्ड कॉस्ट पे. फर्दर, सेबी के द्वारा जो इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस के लिए वेबसाइट डेवलप की गई है, उसकी डिटेल आप सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी. We will also discuss regarding examples of unsolicited messages, जिसको आपको सभी पार्टिसिपेंट्स को इन्वेस्टर्स को अवॉइड करना चाहिए. तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग द ओवरव्यूज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट. Recording in progress. Securities are financial instrument that represent investment in a business with expectation of profit. तो सिक्योरिटीज को बोला जा सकता है ट्रेडेबल फाइनेंशियल असेट्स भी. सिक्योरिटीज के अंदर इंक्लूड किया जाता है इक्विटी शेयर्स ऑफ एनी कंपनी. इक्विटी शेयर्स आर द ऑर्डिनरी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स. जब भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी शेयर्स में, तब आप शेयर होल्डर बन जाते हैं उस कंपनी के. आपको डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है, आपको रिटर्न भी प्राप्त होता है. इसके अलावा सिक्योरिटीज के अंदर इंक्लूड किया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड यूनिट्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर्स.
तो सभी इन्वेस्टर्स को ये भी जानना जरूरी है कि क्या कौन कौन सी चीजें हैं जो सिक्योरिटीज के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती हैं. सो व्हाट आर नॉट इंक्लूडेड इन सिक्योरिटीज? द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड डिपॉजिट विद एनी बैंक or a company, any kind of insurance policies, provident fund and public provident funds, all of these are not included in the securities. तो सिक्योरिटीज मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज को बाय कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं. द मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर इशूड, purchased by investors and subsequently transferred among the investors is called the securities market. सिक्योरिटीज मार्केट के दो सेगमेंट्स हैं which are interdependent and inseparables, namely primary and secondary market. We will also discuss regarding the primary and secondary market in our upcoming slides. Today's investor awareness program empowers all investors through education, ताकि आप फाइनेंशियल नॉलेज को गेन कर सकें, अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकें और सही प्रकार से इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट पर बेटर रिटर्न प्राप्त कर सकें. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द जर्नी ऑफ BSE. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी 9 जुलाई 1875 को. BSE is the oldest stock exchange in Asia and 10th oldest stock exchange in the world. BSE provides you an efficient and transparent marketplace for trading in equity, debt instruments, derivatives and mutual funds. इसी के साथ BSE के द्वारा डिपॉजिटरी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं थ्रू CDSL, that is Central Depository Services Limited. नेक्स्ट इज BSE IPF. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की गई थी 10 जुलाई 1986 को, with an objective to meet the claim of investors against defaulter members in accordance with the guideline issued by the Ministry of Finance, Government of India. इसी के साथ BSE IPF रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल मार्केट से रिलेटेड इन अवेयरनेस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाने के लिए. जिस प्रकार से आज सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए IPA ऑर्गेनाइज किया गया है, लाइकवाइज द सेम वे रेगुलर बेसिस पर BSE के द्वारा इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करवाए जाते हैं. फर्दर BSE IPF is also provide monetary relief to the investors during the course of pendency of proceeding against trading members as per the guideline issued by the SEBI. Next is Securities and Exchange Board of India. There are 3 key mandates of SEBI. तो सभी पार्टिसिपेंट्स को ये जानना जरूरी है कि इंडिया के अंदर सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट किया जाता है. सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड सभी इंटरमीडियरीज को रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा. सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप किया जाता है. सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर सभी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है सेबी के द्वारा. फर्दर मेजर वर्क डन बाय सेबीज आर improvement in market design and regulation, increase in efficiency and transparency in market, and availability of new products.
Further, the two segments of securities market, which are primary and secondary market. So primary market is a place where securities are issued first time to the public. New fresh securities are issued for the public. Therefore, it is also called as new issue market. The price of securities in primary market is determined by issuer company in consultation with merchant bankers. The purpose of primary market is to raise capital. अगर किसी भी कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वो कैपिटल रेज कर सकती है प्राइमरी मार्केट के द्वारा अपने सिक्योरिटीज को इशू करके. Capital can be used for any kind of expansion, diversification, modernization of equipment, etc. इसी के साथ प्राइमरी मार्केट एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करता है जहां पर इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं पब्लिक इश्यूज के अंदर भी. नेक्स्ट इज सेकेंडरी मार्केट. Secondary market is a place where trading of already issued and listed securities is done. Therefore, it is also called as post-issue market. The price of securities in secondary market is determined by demand and supply rule. अगर किसी भी सिक्योरिटीज की डिमांड बायर्स ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तब उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी. अगर सिक्योरिटीज की डिमांड कम है, बायर्स कम है, तो उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी. फर्दर, स्टॉक्स ब्रोकर एंड डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स are the intermediaries in a secondary market. The purpose of secondary market is to provide trading facilities to the already listed securities. आप ट्रेडिंग कर सकते हैं सिक्योरिटीज की सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में. There is no trading of securities in primary market. Further, secondary market also provides liquidity to the investors. Type of issues in primary market. Issues can be classified into 4 categories: public issue, right, bonus, and private placement. Public issue is further classified into IPO and FPO. IPO. A company can raise fund once in its lifetime through an IPO. During an IPO, new shares are issued to the public. IPO के अंतर्गत न्यू शेयर्स को इशू किया जाता है पब्लिक के लिए. कोई भी कंपनी अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही कैपिटल रेज कर सकती है IPO के अंतर्गत. नेक्स्ट इज FPO. That is follow on public offer. A company can raise funds multiple times through an FPO. Next is right issue. Right issue. Right issue के अंतर्गत एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को राइट प्रोवाइड किया जाता है पार्टिसिपेशन के लिए, ताकि वो राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सके. Bonus issues is an offer given to the existing shareholders of the company to subscribe for additional shares. अगर आपके द्वारा किसी भी कंपनी में शेयर्स को बाय किया गया है, आप शेयर होल्डर हैं उस कंपनी के, तो जब भी कंपनी के द्वारा बोनस इशू लॉन्च किया जाएगा तो आपको राइट प्रोवाइड किया जाता है कि आप पार्टिसिपेट कर सके बोनस इशू में एडिशनल शेयर्स के लिए. Next is qualified institutional placements in which QIBs can participate. So there are some prerequisites for investing in securities. Securities के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है. The basic requirement, the first one is
रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है। आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए ऑल इन्वेस्टर्स हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट पैन कार्ड इज मैंडेटरी। विदाउट पैन कार्ड आप अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट, आधार कार्ड इज नॉट ए कंपल्सरी डॉक्यूमेंट। You can provide any other documents, for example, passport, driving license, voter ID, etc., if that is available. We will also discuss about all the required detail, all the documents required for the opening of Demat and trading account, regarding mandatory documents and voluntary documents also in our upcoming slides. Next is due diligence. तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर बेटर रिटर्न प्राप्त कर सकें? So due diligence is a process or effort to collect and analyze information about any companies before making a decision. तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कंपनीज के बारे में, ताकि आप जान पाएं कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको किस प्रकार से रिटर्न प्राप्त हो पाएगा उस इन्वेस्टमेंट के दौरान। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ड्यू डिलिजेंस। Due diligence is the primary way to reduce the exposure to risk. All participants can understand very well that investment without analysis is just like driving a car on a highway blindfoldedly. It is an proactive approach जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। आप कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को जान पाएंगे ड्यू डिलिजेंस को कंडक्ट करते हुए। So what type of questions you have to ask before investing? First of all, you have to find out the revenue of company. क्या कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग या फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड में है? जब से कंपनी की स्थापना की गई है या फिर लास्ट 5 इयर्स के रेवेन्यू को आप चेक करें। किस परसेंटेज से रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है एनुअल बेसिस पर, इसको फाइंड आउट करना जरूरी है। फर्दर you also have to consider profit। लास्ट 5 इयर्स में प्रॉफिट किस प्रकार से अगर इंक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज क्या ट्रेंड क्या फॉलो किया जा रहा है प्रॉफिट के द्वारा। क्या कंपनी कैपेबल है अपने डेट्स को रीपे करने के लिए? डेट्स किस परसेंटेज से हर साल डिक्रीज हो रहे हैं या नहीं? क्या कंपनी की पोजीशन स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो अपने कंपटीटर्स के साथ compete कर पाए? कंपनी के प्रोडक्ट की डिजाइनिंग एमआरपी इस प्रकार से डिफाइन की गई है कि मार्केट में सही प्रकार से वो अपने कंपटीटर्स के साथ compete कर पाए। तो ये सभी ड्यू डिलिजेंस आप सभी पार्टिसिपेंट्स को ध्यान रखना जरूरी है कि ड्यू डिलिजेंस इज मस्ट बिफोर स्टार्टिंग एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ड्यू डिलिजेंस को कंडक्ट किया जा सकता है सिर्फ आप जब भी कंडक्ट करें तो ध्यान रखें कि वेरीफाइड सोर्सेज से ही आप ड्यू डिलिजेंस को कंडक्ट करें। इन वेरीफाइड सोर्सेज, फर्स्ट वन इज stock exchange. There are two in equity market. There are two stock exchange, NSE and BSE. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट का एड्रेस है www.bseindia.com एंड NSE की वेबसाइट पर भी विजिट करके आप कंपनीज के बारे में ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट कर सकते हैं। फर्दर कंपनीज की इंडिविजुअल वेबसाइट या फिर इंडस्ट्रियल रिसर्च पेपर्स को रीड आउट करके आप ये ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट कर सकते हैं। All participants are requested to conduct the due diligence before starting any type of investment. कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में जानें तभी आप डिसीजन लें। कंपनी के कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, तो रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेट्स सभी को आप कंपेयर करते हुए कंपटीटर्स के साथ में भी, तभी आप अपने डिसीजन पर
डिसीजंस के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट को अपनी स्टार्ट करें। फर्दर, हाउ टू अप्लाई इन पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया जा सकता है। पब्लिक इशू में ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड के माध्यम से पार्टिसिपेट किया जा सकता है। इन ऑनलाइन मोड, द फर्स्ट वन इज एस्बा, दैट इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय लॉग्ड अमाउंट। तो जो अमाउंट रिक्वायरमेंट है पब्लिक इशू में पार्टिसिपेशन के लिए, वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर ही रहता है ब्लॉक्ड फॉर्म में। अगर आपको पब्लिक इशू अलॉट होंगे, इन दैट केस ओनली वो अमाउंट ट्रांसफर होगा इशूअर कंपनी के पास। अगर आपको पब्लिक इशू अलॉट नहीं हुए हैं, तब वो ब्लॉक्ड अमाउंट अनब्लॉक होकर आपके बैंक अकाउंट में विजिबल हो जाता है। नेक्स्ट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा सभी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 2 लाख रुपीज तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आईपीओ के अंतर्गत इन 3-in-1 अकाउंट, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीमैट, ट्रेडिंग एंड बैंक अकाउंट। इसके द्वारा भी पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन ऑफलाइन मोड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ओपन एन डीमैट अकाउंट। आफ्टर ओपनिंग डीमैट अकाउंट, you can apply, you can obtain the application form from stocks broker sponsored bank, or you can download it from the exchange website. After filling the application form, submit it to the stocks broker and sponsored bank and participate in that public issue. Further rights of a shareholder. जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं, then you will become the shareholder of that company. You will become the part owner of that company. जितने परसेंट आपने शेयर्स को बाय किया है, उतने परसेंट के आप पार्ट ओनर बन जाते हैं। तो ये जानना जरूरी है सभी शेयर होल्डर्स के द्वारा कि आपको कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव द राइट टू रिसीव ऑल कॉर्पोरेट बेनिफिट्स व्हेन एवर डिक्लेयर्ड। आपको राइट प्रोवाइड किया जाता है कि आप कंपनी की, आपको रिसीव हो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनको रीड आउट करके आप जान पाएंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस लॉस के बारे में भी। आपको राइट प्रोवाइड किया जाता है कि कंपनी की जनरल मीटिंग्स को आप अटेंड कर पाएं। फर्दर, यू ऑल्सो हैव वोटिंग राइट्स थ्रू ई वोटिंग एंड पोस्टल बैलेट, जिसके द्वारा आप कंट्रीब्यूट कर सकें कंपनी के की कॉर्पोरेट डिसीजन गवर्नेंस डिसीजंस के अंदर। इसी के साथ सभी शेयर होल्डर्स को राइट प्रोवाइड किया जाता है कि आप क्वेश्चंस कर सकें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एंड किसी भी प्रकार का रेजोल्यूशन प्रपोज कर सकें। Shareholders also have a right to participate in matters needing their approval for company proceedings. तो Arun sir, you are not audible. I think, okay, he's joined back. सर स्क्रीन शेयर दोबारा इनिशिएट कर दीजिए।
सर आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। किस क्या हुआ है, इसको बार बार डिस्कनेक्ट। हाँ जी सो सर, गुड। नेक्स्ट इज eKYC, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए प्रोटेक्शन मेजर लिए गए हैं सेबी के द्वारा। फर्स्ट वन इज eKYC, जो कि ऑनलाइन नो योर कस्टमर प्रोसेस है, आधार कार्ड के द्वारा ऑथेंटिकेशन की जाती है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ अटॉर्नी। All investors have to keep this in mind that POA is not a compulsory document. It is only required to avail internet trading facilities. Next is development of pledge and repledge framework. इसके अंतर्गत सभी इन्वेस्टर्स जो सिक्योरिटीज के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप उनको एज एन कोलेटरल यूज कर सकते हैं। आप मार्जिन को प्लेस करते हुए उनके अगेंस्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं प्लेज फ्रेमवर्क को यूज करते हुए। नेक्स्ट इज बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। सभी रिटेल इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट के फीचर्स को यूज कर सकते हैं रिड्यूस्ड कॉस्ट पे। तो अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, 2 लाख रुपीज से कम की इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी 2 लाख रुपीज से कम की इन्वेस्टमेंट है सिक्योरिटीज मार्केट में, तब आपको BSDA अकाउंट के फीचर्स को अवेल करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स in which products are labeled on the basis of risk associated with the scheme. For example, low risk mutual funds, medium risk, medium to moderate, and high risk mutual funds are some examples. तो आप all investors can invest in mutual funds according to their risk appetite. आपकी जो रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी है, आप कितना इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिस्क ले सकते हैं, उसकी अकॉर्डेंस के उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सेबी के द्वारा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए फीस की कैपिंग की गई है, दैट इज 1,25,000 रुपीज पर क्लाइंट। फैमिली के सभी मेंबर्स को कंसीडर किया जाता है एज एन वन क्लाइंट। फर्दर, there are some do and don'ts of investing in securities market. The first one is make sure to receive funds and securities in your account within 1 day of the payout date. All investors have to ensure that you will receive the contract note within 24 hours of your trading. कॉन्ट्रैक्ट नोट को रीड आउट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो ऑर्डर आपने प्लेस किया है स्टॉक्स ब्रोकर को, क्या उसने उसी ऑर्डर के अकॉर्डेंस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है या नहीं। All investors have to ensure to receive a statement of account at least once a quarter from your stocks broker. Avoid keeping excess money in your demat account. Unused money is transferred from your demat account to your bank account on first Friday of every quarter. तो जो भी अनयूज्ड मनी है, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर को आपके डीमैट से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। डू नॉट कीप साइन डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप विद डीपी और ए ब्रोकर। अगर आप DIS स्लिप को कंपेयर कर सकते हैं बैंक चेक के साथ में भी। बैंक चेक जिसे यूज किया जाता है मनी को ट्रांसफर करने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में, उसी प्रकार से DIS स्लिप को यूज किया जाता है सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने के लिए एक डीमैट से दूसरे डीमैट अकाउंट में। तो एडवांस में कभी भी DIS स्लिप को साइन करके अपने DP को ना दें। जब आपको शेयर्स ट्रांसफर करने हो, ओनली इन दैट केस कंप्लीटली फिल्ड DIS स्लिप को अपने स्टॉक्स ब्रोकर को प्रोवाइड करें। रेगुलर बेसिस पर अपने डीमैट अकाउंट के सिक्योरिटीज एंड बैलेंस को वेरीफाई करते रहें। इन केस ऑफ एनी चेंज in your mobile number and email address, update the details to your stocks broker as soon as possible so that you will receive the regular update regarding your demat account through email and SMS alerts. Do not trust on any hot investment tips providing unrealistic return on investment. किसी भी हॉट इन्वेस्टमेंट टिप्स को आप फॉलो ना करें
जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस को कंडक्ट करें, उसके बाद ही उसी के अकॉर्डेंस आप इन्वेस्टमेंट करें। गेट क्लियर अबाउट ऑल ब्रोकरेज कमीशन फीस एंड अदर चार्जेस जो कि स्टॉक्स ब्रोकर के द्वारा आपको किए जा रहे हैं। इसके बेसिस पर आप स्टॉक्स ब्रोकर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना ब्रोकरेज, कितना कमीशन फीस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, क्या क्या फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्टॉक्स ब्रोकर के द्वारा। तो क्या वो फीचर्स आपके यूजफुल हैं भी या नहीं। तो सभी चीज़ों को कंपेयर करते हुए आप स्टॉक्स ब्रोकर को सिलेक्ट करें। मेक पेमेंट बाय बैंकिंग चैनल चेक ओनली इन द फेवर ऑफ स्टॉक्स ब्रोकर। कभी भी थर्ड पार्टी के नाम पर आप पेमेंट ना करें, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग चैनल और चेक के द्वारा स्टॉक्स ब्रोकर के फेवर में ही आप पेमेंट करनी चाहिए। अपना इंटरनेट ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड को किसी के साथ भी शेयर ना करें। अगर आप पासवर्ड शेयर करते हैं तब आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Do not get carried away with advertisement about the financial performance of companies in print and electronic media. Do not blindly follow, do not blindly imitate investment decisions of others. किसी के भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को आप कॉपी ना करें, सिर्फ अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्टमेंट करें। Do not blindly follow media reports on corporate development, as some of these could be misleading. Advice to all investors, सभी इन्वेस्टर्स को एडवाइस किया जाता है कि सिक्योरिटीज मार्केट में पार्टिसिपेशन से पहले अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानें। जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत सबसे पहले आता है राइट एंड ओब्लिगेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स। सही प्रकार से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट करके आप अपने राइट्स के बारे में भी जान सकते हैं। In any case, never do impulsive buying or panic selling. Deal only and only with SEBI registered intermediaries. Avoid any type of unsolicited investment tips जो आपको किसी भी प्रकार से प्राप्त हो सकती हैं। तो इन्वेस्टमेंट जब भी करें आप ड्यू डिलिजेंस के अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट इज स्कोर्स, दैट इज कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम डेवलप्ड बाय सेबी। सेबी के द्वारा स्कोर्स की डेवलपमेंट की गई थी, स्थापना की गई थी 2011 में, जो कि एक कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है। स्कोर्स की वेबसाइट है www.scores.gov.in. It is an investor friendly centralized web based complaint redressal system जिसके अंतर्गत सभी इन्वेस्टर्स कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं किसी भी लिस्टेड कंपनी, स्टॉक्स ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, एनी अदर इंटरमीडियरीज के अगेंस्ट। स्कोर्स की वेबसाइट के साथ साथ मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, सो ऑल इन्वेस्टर्स कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द iOS एंड एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म ऑल्सो, एंड they can use the scores platform for any kind of complaint regarding the securities market. नेक्स्ट, ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए। फर्स्ट वन इज प्रूफ ऑफ आईडी, प्रूफ ऑफ एड्रेस। इन प्रूफ ऑफ आईडी पैन कार्ड इज मैंडेटरी। Other than this, you can also provide voter ID, driving license, passport or Aadhaar card, any other ID issued by central or state government. Next, proof of address, जिसके अंतर्गत आप किसी भी प्रकार का यूटिलिटी बिल्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक पासबुक को यूज किया जा सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी को भी प्रूफ ऑफ आईडी में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट साइन करके प्रोवाइड करने पड़ते हैं।
In mandatory documents, first one is right and obligations of stocks broker and investors. तो सही प्रकार से रीड आउट करने के बाद आप मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट करके अपने राइट्स के बारे में जान सकते हैं. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स, डू एंड डोंट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ स्टॉक्स ब्रोकर एंड टैरिफ शीट. टैरिफ शीट जिसको रीड आउट करके आप जान पाएंगे कि स्टॉक्स ब्रोकर के द्वारा आपको किसी भी ट्रेड के लिए कितना चार्ज किया जाएगा. सभी डिटेल्स में फॉर एग्जांपल एएमसी चार्जेस मेंशन किए जाते हैं आपकी टैरिफ शीट के अंदर. नेक्स्ट वॉलेंटरी डॉक्यूमेंट्स इन विच फर्स्ट वन इज रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन, पावर ऑफ अटॉर्नी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट डिक्लेरेशन and consent for electronic communication and receiving alert through email and SMS. तो अगर आपको वॉलेंटरी फीचर्स अवेल करने हैं तो इनको साइन करके आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने डीपी को, ताकि आप फीचर्स को अवेल कर पाए. आफ्टर कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस किसी भी प्रकार के ट्रेड ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल एनी काइंड ऑफ बाय सेल स्टॉप लॉस एनी अदर काइंड ऑफ ट्रेड ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड थ्रू by visiting stocks brokers office. आप फोन कॉल के द्वारा अपनी आईडी को कंफर्म करवाने के बाद ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं थ्रू ईमेल एड्रेस, थ्रू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी. आप स्टॉक्स ब्रोकर की वेबसाइट, स्टॉक्स ब्रोकर की मोबाइल ऐप को भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट नोट विच इज द रिकॉर्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिसके अंदर डिटेल मेंशन की जाती है ऑन विच डेट, टाइम, प्राइस, क्वांटिटी, ट्रेड आईडी. स्टॉक्स ब्रोकर के द्वारा उस ट्रेड को कंप्लीट करने के दौरान आपको चार्जेस क्या क्या चार्ज किए गए हैं. तो सही प्रकार से रीड आउट करके कॉन्ट्रैक्ट नोट को आप वेरीफाई कर सकते हैं अपनी ट्रेड के बारे में भी. फर्दर, all investors have to keep this in mind that you will receive the contract note within 24 hours of the date from the trade execution. ई कॉन्ट्रैक्ट नोट आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जाता है. फर्दर यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर अ फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट इफ दैट इज रिक्वायर्ड बाय यू. हाउ टू सेटल बाय एंड सेल ट्रेड्स इन पे इन ऑफ फंड्स इन कैश एंड डेरिवेटिव सेगमेंट्स. इट इज ऑन और बिफोर trading plus 1 day. All investors have to keep this in mind that during the pay-in feature, you can only transfer through check, NEFT and RTGS only in the favor of stocks broker. Cash payment कभी भी ना करें pay-in के लिए. Payout of fund and securities to be received in investors demat account within 24 hours of the payout day. Cash dealing is strictly prohibited in the stock exchange. All investors can check the requirement of margin on the website of stock exchange. Further, keep this in mind. Investors, instead of transfer of shares to brokers demat account, you can use the margin. You can use the securities by placing the margin through pledge framework. Early pay in process. When investors pay funds and delivery shares before the designated settlement date is known as early pay in process. Next is grievance redressal. If investors has dispute with his stocks broker, immediately complain the stocks broker if you do not understand any type of transactions. अगर आपके द्वारा कोई ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आ रही है या आपके द्वारा ऑथराइज नहीं की गई है, इमीडिएटली अपने स्टॉक्स ब्रोकर को कांटेक्ट करें, रिटर्न के अंदर कंप्लेंट दर्ज करवाएं, अपने कंप्लेंट की सभी कॉपीज को रिटेन रखें. इन केस योर कंप्लेंट हैज नॉट बीन एड्रेस्ड और रिड्रेस्ड बाय द ट्रेडिंग मेंबर, फाइल द कंप्लेंट टू स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज को कंप्लेंट दर्ज करवाई जा सकती है ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा. आप एक्सचेंज के पोर्टल को विजिट करके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं अपनी आईडी से, ईमेल लिखकर, फिजिकल लेटर लिखकर आईएससी सेंटर को, या फिर अपने नियरेस्ट आईएससी सेंटर को विजिट करके कंप्लेंट दर्ज करवाई जा सकती है स्टॉक एक्सचेंज को भी. डिपॉजिटरीज. देयर आर 2 डिपॉजिटरीज इन इंडिया. फर्स्ट वन इज CDSL एंड NSDL. तो डिपॉजिटरीज के द्वारा क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं.
First one is you can transfer your securities through with the help of depositories. आप ऑफलाइन मोड के अंतर्गत DIS स्लिप को यूज कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन मोड में आप डिपॉजिटरीज के द्वारा भी सर्विस सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप बेनिफिशियल ओनरशिप को चेंज कर सकते हैं। Further, if you want to dematerialize your securities, which includes the conversion of physical certificates of securities to electronic form, तो अगर आप डीमैट फीचर को अवेल करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर आप रीमेटलाइजेशन करना चाहते हैं, विच इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज टू फिजिकल सर्टिफिकेट्स, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये सभी फीचर्स इन्वेस्टर्स अवेल कर सकते हैं डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करके। All investors have to keep this in mind that DMAT secure depositories is 100% safe and secure. Next is basic service DMAT account, that is BSDA. सभी स्मॉल इन्वेस्टर्स BSDA अकाउंट के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स की होल्डिंग है लेस देन 50,000 रुपीज एंड डेट सिक्योरिटीज की होल्डिंग है लेस देन 1 लाख रुपीज, इन दिस केस देयर इज नो AMC चार्जेस, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। इसी को अगर आप कंपेयर करें तो अगर आपके पास नॉर्मल डीमैट अकाउंट होता तब आपको चार्जेस किए जाते इस केस में। इन सेकंड केस, इफ यू हैव holdings of equity shares between 50,000 to 2 lakh rupees and debt securities की अगर आपकी holdings है between 1 lakh to 2 lakh rupees, in that case there is only rupees 100 per annum as an annual maintenance charges. If the holding of shares above then the value of shares of your holding is above than 2 lakh rupees, then the charges are applicable according to नॉर्मल डीमैट अकाउंट। अगर आपको BSD अकाउंट के फीचर्स को अवेल करना है तो आपके पास सिर्फ एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास 2 में डीमैट अकाउंट है तब आप इस फीचर्स को अवेल नहीं कर सकते हैं। 2 लाख रुपीज से अगर कम की इन्वेस्टमेंट है तो आप इस फीचर्स को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंसोलिडेट अकाउंट स्टेटमेंट, विच इज summary of the holdings of equity, debt and securities, equity, debt, securities and mutual funds। आप अपनी ट्रांजैक्शंस को भी चेक कर सकते हैं कंसोलिडेट अकाउंट स्टेटमेंट को रीड आउट करके। टुडेज इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत सभी इन्वेस्टर्स को एडवाइस किया जाता है कि आप किसी भी प्रकार के अनसोलिसिटेड मैसेजेस को अवॉइड करें जो कि आपको सोशल मीडिया के द्वारा रिसीव हो सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर सेबी ट्राई एंड एक्सचेंज के द्वारा एडवाइजरी नोटिस जारी किए जाते हैं। BSE ने इनिशिएटिव लिया गया है, BSE के द्वारा वेबसाइट, ट्रेडिंग टर्मिनल्स एंड मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। नेक्स्ट इज डीलिंग विद अनसोलिसिटेड मैसेजेस, जिसकी लिस्ट आप चेक कर पाएंगे BSE की वेबसाइट एंड ट्रेडिंग टर्मिनल पर। फर्दर इम्पोजिशन ऑफ ASM, दैट इज एडिशनल सर्विलेंस मेजर, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लिया जाता है। इट इज एन रेगुलेटरी मैकेनिज्म। withholding of payouts, trading members having significant contribution in SMSs, stocks brokers were informed to withhold the payouts. Trading members to confirm the compliance on a monthly basis. Any non-compliance may attract further action such as levy of ASM or other disciplinary action as deemed fit. आप सभी इन्वेस्टर्स की स्क्रीन पर, सभी पार्टिसिपेंट्स की स्क्रीन पर विजिबल है आपको एग्जांपल्स अनसोलिसिटेड मैसेजेस के, जिसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है किसी भी प्रकार की इंट्राडे टिप्स, मल्टी बैगर स्टॉक टिप्स, रिसर्च वीडियोस, जैकपॉट कॉल्स, 100% श्योर शॉर्ट कॉल्स, बाय टुडे सेल टुमारो। किसी भी प्रकार का लिंक प्रोवाइड किया जा सकता है आपको व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का। सो आप सभी पार्टिसिपेंट्स को एडवाइस किया जाता है
कि आप किसी भी अनसोलिसिटेड मैसेजेस को फॉलो ना करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू डिलिजेंस को कंडक्ट करें और उसी के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करें। बीएससी के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, बोल्ट प्लस ट्रेडिंग टर्मिनल डेवलपमेंट की गई है जिसका नाम है बोल्ट प्लस ऑन वेब। इट इज ए पावरफुल रियल टाइम ट्रेडिंग सॉल्यूशन जो कि प्रोवाइड किया गया है बीएससी के द्वारा। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। बीएससी के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, वेबसाइट को डेवलप किया गया है जिसको विजिट करके आप ड्यू डिलिजेंस को भी कंडक्ट कर सकते हैं। बीएससी का वेबसाइट का एड्रेस है www.bscindia.com। इसी के साथ बीएससी के द्वारा सेपरेट मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं जो कि हैं 750-684-0578। आई रिपीट 750-684-0578। सभी इन्वेस्टर्स अनसोलिसिटेड मैसेजेस को इन नंबर्स पे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। Objective of BSE as a stock exchange continuously aim to strengthen the market regulatory framework for listing and trading of securities of companies to protect the integrity of securities market and interest of investors. Recent market updates. A revision of tick size from 0.05 to 0.1 for scripts below ₹100 in equity cash segment effectively from the 1st of the March 2023. The reduction in the tick size will lower the impact cost of the investors. सेंसेक्स एंड बैंकेक्स डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट लोड को स्मॉल किया गया है फ्रॉम 15 मई 2023। सेंसेक्स के लोड साइज को 15 यूनिट से 10 यूनिट्स पर कर दिया गया है। बैंकेक्स के कॉन्ट्रैक्ट लोड को 20 यूनिट्स से 15 यूनिट्स पर कर दिया गया है। रिडक्शन इन द लोड साइज विल हेल्प इन्वेस्टर टू रिड्यूस देयर रिस्क एक्सपोजर। नेक्स्ट चेंज इन एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम थर्सडे टू फ्राइडे। एक्सपायरी को चेंज किया गया है। सेबी के द्वारा डेडिकेटेड वेबसाइट डेवलप की गई है सभी इन्वेस्टर्स के लिए जिसको विजिट करके आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सेबी की वेबसाइट का एड्रेस है https://investors.sebi.gov.in। आप विजिट करके वेबसाइट को जान पाएंगे हाउ टू मैनेज योर पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। यू विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू मैनेज मनी, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल टूल्स एंड कैलकुलेटर्स जो कि अवेलेबल हैं, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। यू कैन चेक योर फाइनेंशियल हेल्थ। आपको अपकमिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम एंड सेमिनार सेबी के द्वारा कहाँ पर प्लान किए जा रहे हैं इसकी डिटेल भी वेबसाइट पर प्राप्त होगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंशियल एजुकेशन मटेरियल्स को। लिंक प्रोवाइड किया जाता है रिलेवेंट वेबसाइट्स का जो इन्वेस्टर्स के लिए रिलेवेंट है। तो आप सभी इन्वेस्टर्स को एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी नॉलेज को एनहांस करें, ड्यू डिलिजेंस को कंडक्ट करने के बाद ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें सिक्योरिटीज मार्केट में। Disclaimer: dealing in derivative product is considered to be risky, which required specialized knowledge and expertise, and retail investors are cautioned about the same. Such investors are advised to trade in these products after gaining sufficient knowledge and within his/her risk appetite. तो इसी के साथ मैं सभी आप पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने आज का इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कंडक्ट किया गया है उसे अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर अटेंडिंग टुडेज IAP। थैंक यू वेरी मच सर। ऑडियंस, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। किसी की कोई भी क्वेरी हो प्लीज आप पूछ सकते हैं। किसी की कोई भी क्वेरी नहीं है, ठीक है सर, सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर।